particle physics is very rich branch of the physics in which we study about the subatomic particles, and we also know that according to the structure of the atom, protons and neutrons are confined into the nucleus, and electrons will orbit around the nucleus in different energy levels. अच्छा, अब यहाँ पर ये जो particles हैं, these are not the fundamental particles basically, and these are the combination of other subatomic particles. अब ये other subatomic particles का हमें कैसे पता चलता है? Basically students, when we observe or detect the cosmic radiation which is coming from different parts of the universe towards the earth, तो हम इसको डिफरेंट डिटेक्टर्स के थ्रू जब हम इसको डिटेक्ट करने के बाद स्टडी करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अलावा भी कुछ पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं. तो अगर वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मैटर में भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहे होंगे. और उसके अलावा व्हेन इनटू द पार्टिकल एक्सेलरेटर्स with high in the presence of high energy, electrical energy and the magnetic field, जब हम प्रोटॉन टू प्रोटॉन या न्यूट्रॉन टू न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन या इनमें से दूसरे जो पार्टिकल्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, जब इन पार्टिकल्स को इन द एग्जिस्टेंस ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इनको कोलाइड करते हैं तो ये दूसरे अदर पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि दीज आर नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल्स, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर पार्टिकल्स which can be predicted as the other atomic subatomic particles. अच्छा, अब यहाँ पर जो है दूसरे पार्टिकल्स का तो हमें फ़िलहाल नाम नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है. सही है. We know very well about the electrons, protons and neutrons. So we know that the electrons and protons, neutrons and protons are the heavier particles. They have the greater mass as compared to the electrons, and electrons are the very light particles क्योंकि उनका mass बहुत कम होता है. तो इस वजह से according to their masses we can classify the particles into two major classifications, just like hadrons and leptons. अच्छा, अब ये hadrons और leptons हैं, इनको हम categorize करते हैं according to the nature of the nuclear forces. क्योंकि in the last lectures we have already studied about the strong nuclear force and the weak nuclear force, which are the two fundamental forces. क्योंकि total 4 fundamental forces होती हैं. These are the two fundamental forces, strong nuclear and weak nuclear force. अच्छा, तो particles which can experience the strong nuclear force, these are called the hadrons, and the particles which cannot experience the strong nuclear force are called the leptons. ठीक है. अच्छा, अब hadrons जो है वो हमारे कौन से particles हैं? These are the heavier particles, just like इनकी एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. these are the hadron particles क्योंकि ये heavier particles हैं, massive particles हैं. और leptons जो हैं, these are the in this classification we can categorize the light particles, those have the less mass. Okay, just like electrons. So electrons are the examples of leptons. अच्छा, अब यहाँ पर हम इनको define कर देते हैं. The hadrons, these are all particles that are affected by the strong nuclear force. Okay, for example proton and neutron. And leptons, these are all particles that are unaffected by the strong nuclear force, for example electrons. Protons and neutrons are the combination of different types of the quarks. Okay. अच्छा, अब क्वार्क्स में भी हमारे पास जो है वो 2 टाइप्स होती हैं. दोज आर क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स. अच्छा, एक और बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि जितने भी पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, हर एक का एक एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है. जिस तरह से यहाँ पर क्वार्क्स हैं तो उनका एंटी क्वार्क भी होगा, जिस तरह से न्यूट्रिनो है उनका एंटी न्यूट्रिनो भी होता है. ठीक है, तो हर पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट कर रहा होता है. सही है. तो अब यहाँ पर क्वार्क्स जो हैं, क्वार्क्स एंड एंटी क्वार्क्स, दे हैव फर्दर 3 कैटेगरीज, जस्ट लाइक अप, डाउन एंड स्ट्रेंज. अब यहाँ पर जो अप क्वार्क्स हैं, इनके लिए ये फील्ड एरो साइन हम यूज़ करते हैं और इसके लिए सिंबल यूज़ करते हैं टू शो दिस अप क्वार्क पार्टिकल, दैट इज़ यू. और डाउन क्वार्क्स के लिए डाउनवर्ड एरो, दैट इज़ द फील्ड एरो, एंड वी कैन यूज़ हियर द डी फॉर इट, फॉर दिस एज अ सिंबल फॉर इट. अच्छा, और स्ट्रेंज क्वार्क्स के लिए हम यूज़ करते हैं एस. अच्छा, अब एंटी पार्टिकल्स के लिए हम उसके ऊपर बार यूज़ कर देते हैं. जस्ट लाइक अप एंटी क्वार्क्स के लिए हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ यू बार.
और डाउन एंटी क्वार्क्स के लिए हम यूज़ करते हैं दैट इज़ डी बार, और स्ट्रेंज एंटी क्वार्क्स के लिए हम यूज़ करते हैं एस बार। ओके, अच्छा अब हम ये देखते हैं कि ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं ये किस कॉम्बिनेशन में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स के भी डिफरेंट टाइप्स हैं दैट इज़ अप, डाउन एंड स्ट्रेंज। तो ये जो पार्टिकल्स हैं आपके पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, ये किस तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं फॉर दीज पार्टिकल्स। तो प्रोटॉन जो है ये हमारे पास 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है, और इसी तरह से जो न्यूट्रॉन है इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क्स। अच्छा, इसके अलावा जो फर्दर पार्टिकल्स हैं जिस तरह से मियॉन्स पार्टिकल्स हैं, ट्रॉ पार्टिकल्स हैं, और उसके अलावा पायोन पार्टिकल्स हैं और फाई मिजॉन पार्टिकल्स हैं, तो इस तरह से डिफरेंट और पार्टिकल्स भी हैं। तो इनकी हमें बहुत ज़्यादा तफसील की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चले हम देखते हैं कि यार ये क्वार्क्स के थ्रू जो है, क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से हम और कौन कौन से पार्टिकल्स जो हैं फॉर्म कर सकते हैं। तो एक ही हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल है दैट इज़ द पॉजिटिव पायोन, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पाई पॉजिटिव मिजॉन। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है ये कॉम्बिनेशन है 1 अप क्वार्क पार्टिकल का और 1 डाउन एंटी क्वार्क पार्टिकल्स को। ठीक है, तो ये इनका कॉम्बिनेशन है। अच्छा, इसके अलावा जो है 5 मिजॉन पार्टिकल एक होता है, तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है किसका, एक स्ट्रेंज पार्टिकल का और एक एंटी स्ट्रेंज क्वार्क का, और दूसरा एंटी स्ट्रेंज स्ट्रेंज एंटी क्वार्क का, मतलब स्ट्रेंज क्वार्क एंड स्ट्रेंज एंटी क्वार्क। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द फर्दर क्लासिफिकेशंस ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ द पार्टिकल्स जस्ट लाइक हेड्रॉन्स एंड लिप्टॉन्स। तो हेड्रॉन्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं इन द 2 टाइप्स, बैरियॉन्स एंड मिजॉन्स पार्टिकल्स में। अच्छा, बैरियॉन्स जो हैं इनकी एग्जाम्पल्स होती हैं हमारे पास प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दीज आर द मोस्ट स्टेबल पार्टिकल्स, लेकिन ये एक दूसरे में डिके हो सकते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे, कि प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में या न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में डिके हो सकता है। उसके साथ साथ कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो इमिट होते हैं, पार्टिकल्स हमें शामिल करने पड़ते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, मिजॉन्स में जो है ये फर्दर 2 टाइप्स ऑफ द सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जस्ट लाइक पायोन एंड केन्स। ठीक है, अच्छा अब ये जो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं पायोन, जो कि आपने ऊपर भी स्टडी किया था। अच्छा, पायोन की भी जो है ना वो फिर डिफरेंट टाइप्स होती हैं कि एक तो न्यूट्रल पायोन भी हो सकता है, जिस तरह से न्यूट्रॉन हमारा न्यूट्रन पार्टिकल है और प्रोटॉन जो है वो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह से पायोन के ऊपर भी जो है वो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल भी हो सकता है और इसका एंटी पार्टिकल भी होता है विद पाई नेगेटिव। अच्छा, ये जो आपके पास है इट इज़ कॉल्ड KAON, केन। अच्छा, अब यहाँ पर इसके लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं K, तो ये भी आपका न्यूट्रल पार्टिकल भी हो सकता है और उसके अलावा पॉजिटिव पार्टिकल भी हो सकता है और उसके अलावा इसका एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह से हर पार्टिकल का जो है वो एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो हेड्रॉन्स को जो है वो हम बैरियॉन्स और मिजॉन्स में कन्वर्ट मतलब क्लासीफाई कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि प्रोटॉन के बारे में ये कहा जाता है कि इट इज़ द मोर स्टेबल पार्टिकल ऑफ दिस यूनिवर्स। नाउ वी कैन क्लासीफाई द लेप्टॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लेप्टॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिव पार्टिकल्स। इसके अलावा जो है मियॉन्स पार्टिकल्स होते हैं, टॉ पार्टिकल होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब रेडियो एक्टिव प्रोसेस में बीटा डिके होता है तो वहाँ से नेगेटिव न्यूक्लियस में से नेगेटिव पार्टिकल इमिट होता है। तो हमें ये पता है कि यार वहाँ पर तो नेगेटिव पार्टिकल हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोटॉन्स आर द पॉजिटिव पार्टिकल्स एंड न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो फिर वहाँ से बीटा नेगेटिव पार्टिकल कैसे निकल सकता है? तो बेसिकली होता क्या है कि न्यूट्रॉन जो है वो स्प्लिट होता है और वो एक प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है, एक पॉजिटिव पार्टिकल प्रोड्यूस करता है और एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल प्रोड्यूस करता है। और बीटा नेगेटिव पार्टिकल न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं कर सकता फर्दर, तो वो वहाँ से इमिट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ बीटा पार्टिकल। ठीक है, तो इसी तरह से जो है मियॉन्स जो हैं, दीज आर अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो मियॉन्स जो हैं इनकी भी आपके पास जो है मतलब न्यूट्रल भी हो सकते हैं और उसके अलावा पॉजिटिव भी हो सकते हैं और इनके भी एंटी पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह से जो आपके पास टॉ है, टॉ पार्टिकल, तो ये भी जो है आपके पास न्यूट्रल भी हो सकता है और इसका
पॉजिटिव पार्टिकल भी हो सकता है और उसके अलावा इसका एंटी पार्टिकल भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। दूसरी बात ये कि जब बीटा डिके होता है तो बहुत सारे बीटा पार्टिकल्स हैं वो आउट ऑफ रेंज उनकी काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब डिफरेंट रेंज ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज होती हैं। तो कुछ स्लो स्पीड से मूव कर रहे होते हैं, कुछ फास्ट स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि जब न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो उसके साथ साथ कुछ और पार्टिकल्स भी इमिट होने चाहिए, तो वो बेसिकली न्यूट्रिनो पार्टिकल्स होते हैं। तो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स जो हैं वो दीज आर वेरी लाइट पार्टिकल्स, ऑलमोस्ट इनका मास 0 होता है एंड दे डोंट हैव द चार्जेस, मतलब ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं, तो इनका कोई चार्ज नहीं होता। सही है। तो अब ये जो न्यूट्रिनो पार्टिकल्स हैं, दीज आर द स्पेशल काइंड ऑफ द पार्टिकल्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, मतलब न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, न्यूट्रिनो म्यून्स भी हो सकते हैं और न्यूट्रिनो टोआ पार्टिकल भी हो सकते हैं। मतलब इनको हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं जस्ट लाइक न्यूट्रिनो इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो म्यून एंड न्यूट्रिनो टोआ पार्टिकल। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इन द फर्दर लेक्चर we will discuss about कि how the proton can be converted into the neutron and neutron can be converted into the proton। तो एक जो है वो हमारा पॉजिटिव बीटा डिके होता है और दूसरा नेगेटिव बीटा डिके होता है। ये हम लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब उसकी इक्वेशंस डिस्कस करेंगे यहाँ पर। थैंक यू।